Yes. Hey, my ninth class, a very good evening to all of you. Today in this class, we are going to discuss all the NCERT questions related to chapter work and energy, right? All the index questions and back exercises as well. So I think we should get started, otherwise we will be left with so many questions. Okay, the very first question is, a force of 7 Newton acts on an object, right? ये एक object है, ठीक है? इस पे force हमने लगाया 7 Newton and इसने displacement show किया 8 meters का, right? In the direction of the force. So you have to calculate the work done, right? Yes, part, what is given to us? Force is given, right? Displacement is given. Yes. So work done is equal to F into D, which means Force into displacement. yes. And it will be 50. मैम displacement ऐसे नहीं होता. एस भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है, लिख सकते हो आप. हाँ जी, बताओ मुझे आगे. Joule. जूल, यस. ऐसा यूनिट नहीं भूलना बिल्कुल भी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ porter lifts a luggage of 15 kg, yes, and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. मतलब उसने luggage को उठाया, right? So that work done is in the form of, yes, potential energy, right? So what is given to us? Given thing is, we are given mass, right? Then we are given H. 12.5. G is given to be 10. 12.5, or is it 10 ka square is 225, right? If I'm not wrong. 22.5. Yes. So work done will be equal to the potential energy, which is equal to mgh. Sorry, I just stopped writing the unit. 225. 225. It will be 15 into 10 into 1.5. Yes, Ashi, which unit should I write? Joule. Joules. Oh. Okay. Okay, now Parth, you tell me, when is work is said to be done? When do we say that work is done? हम किन केसेस में, मतलब आप कैसे कहोगे, कैसे डिफाइन करोगे कि Force into displacement. कंडीशन क्या होगी? Yes. मैम अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाई गई है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में शो होती है. नहीं, जरूरी नहीं है. अगर ऑपोजिट भी होगा तो वर्क डन माना जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव वर्क डन होगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर चुका होता. यस. कंडीशन अप्लाइड क्या होता है कि फोर्स शुड प्रोड्यूस द मोशन. ठीक है, हमें मोशन चाहिए, डायरेक्शन का कोई इश्यू नहीं है. परपेंडिकुलर होगा तो जीरो हो जाएगा, राइट? वर्क डन नहीं होगा उस केस में, क्योंकि वो वैल्यू जीरो हो गई आपकी, राइट? सो वर्क इज सेड टू बी डन when a force produces motion in the object, right? जब वो ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर रहा है तभी वर्क डन होता है, राइट? नेक्स्ट. Okay, write an expression for the work done when the force is acting in the direction of its displacement. Yes, beta. Yes. वैसे बाबा, आई थिंक यू आर करेक्ट. अगर हम इसको ऐसे ही लिखे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज वी विल बी कंफ्यूज्ड, राइट? ये जो डी है ना, एक्चुअली ये कई जगह लिखा होता है, टॉर्क के लिए भी यूज करते हैं, तो मैं इसीलिए कई बार हैंड पे जैसे चढ़ा हुआ है डी लिख देती हूँ. तो ठीक है, आई विल कॉन्शियसली मेक श्योर कि मैं इसको ऐसे ही लिखूं डिस्प्लेसमेंट को, राइट? सो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. अब इसमें पता क्या है बेटा, सिर्फ इतना सा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. हम कहो मैम हमको लिख के आए थे, हमें मार्क्स ही नहीं दिए मैम ने. मैम ने कहना है बेटा, जब भी हम किसी के घर जाते हैं, व्हाट वी डू, वी हैव अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्टरी सेशन, जैसे कि आप नमस्ते करते हो, देन गिव योर इंट्रोडक्शन, आप कौन हो, आप क्या लगते हो, वो हमें बताना पड़ेगा. द इंट्रोडक्टरी सेशन वो हमने नहीं दिया. सो बट हाउ विल वी से,
F is the force which is acting on an object and that force has moved that object through distance s. It has shown some displacement, right? तो वो wording लिखनी बहुत जरूरी है. क्लियर होगी मेरी बात. और साथ में ये भी मेंशन जरूर करना that force applied is measured in newtons and the displacement measured is the displacement covered is measured in meters. Okay, so the work done calculated is it is calculated with the unit joule. तो उससे क्या होता है, add on feature आता है. Yes, we know the concept. Okay, now tell me who will define 1 joule of work. Yes, 1 joule of work is said to be done when One When a force on Newton's object. yes is said to be done when 1 Newton 1 Newton of force moves 1 meter object displacement. yes, on an object and moves it through 1 meter distance या फिर displaces it through 1 meter. ठीक है जी, हम यहाँ पे word use कर सकते हैं displaces. Okay, then it is said to be 1 joule of work. Okay, now a pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. The field is being plowed. ठीक है, ये क्या है, 15 meter long है. Okay, ये line is extra. Okay, how much work is done in plowing the length of the field? तो इसमें हमें क्या करना है, क्या given है, कौन बताएगा मुझे? Yes, पृथ्वी आप बताओ. Yes बेटा. F is given to be 140 Newton, right? Distance is your 15 meters, right? So work done will be equal to F into S. So it will be 140. 210. Yes. It is 200 and 2100. हाँ वही मैं देख रही हूँ 2000 and ठीक है. Next, an object of mass 15 kg moving with a uniform velocity of 4 meter per second. ठीक है, आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बतानी है कि उस ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस की हुई है. Yes, who will tell me this? गिवन चीजें क्या हैं बेटा? जो सेकंड क्वेश्चन है मैम, उसमें मैम जो मैम वो सॉरी बेटा, क्या बोल रहे हो, एक बार दोबारा बोलो. सेकंड, हाँ जी मैम जो 7th क्वेश्चन है मैम, 7th हाँ जी क्वेश्चन में मैम बेटा मुझे आपकी बात सुन नहीं रही. 7th क्वेश्चन मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही है पार. It is getting very echoed. मैम जो हम डालते हैं स्क्वायर में, मैम स्क्वायर की जगह -1 डालना है. हाँ जी हाँ, क्या चीज स्क्वायर मतलब ये मीटर पर सेकंड हम क्या? वेलोसिटी कह रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड. ये बेटा स्क्वायर की ये ऐसे है ना, तो ये क्या था जहाँ से मतलब मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अपने जो टाइपिस्ट है मेरे वो ऐसे लिख देते हैं, राइट? तो अब ये क्या होता है, ये पावर में नहीं रह पाता, जब मैं इसको वन नोट में शिफ्ट करती हूँ तो ये ऐसे बन जाता है. घबराओ नहीं, इट इज मीटर पर सेकेंड ओनली. ठीक है, ये -1 जो है ना बेटा ये पावर में है. ओके पार्थ, समझ आया बेटा? डिड यू गेट मी? So given yes ma'am. okay beta, mass is given to be 15 kg, right? B is given to be Velocity per second. Yes, Prithvi. half mv square. Yes, very good. Krishna, why you are late beta? Abhi though he is still not joined. No. Yes, half into 15 into 60, right? So 8. 120 joule. Yes, it will be 120 joules, right? Okay. Now next the work you are going to do, all of you. ठीक है, इसमें क्या है? What is the work
which is to be done to increase the velocity of car. ये है किलोमीटर पर आवर, ये है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर. पहले हम इसे किस में बदलेंगे बेटा? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, राइट? तो फाइनल, ये फाइनल होगा बेटा माइनस इनिशियल. तो कैलकुलेट दिस एंड टेल मी. यस, यस बेटा. हमारा जो क्या होता है, जब आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं. उसके बाद हम हाफ m जो है कॉमन लेके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर लेते हैं. दिस इज सिमिलर टू योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज a प्लस b इनटू a माइनस b. उसको सॉल्व करने के बाद सो वी विल गेट आवर वर्क डन. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यस, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? मुझे सिर्फ डेफिनेशन चाहिए. I just want the definition. Which is stored inside the object. No. Ashi, you tell me. Kinetic energy. The object which have only Is the energy. Yes. Possessed by virtue of its motion. ठीक है? हाँ, जो एनर्जी को प्रोसेस करती है. Yes, virtue of motion. Potential energy अगर आता है तो that is by virtue of its position or height. बेटा क्या सबको आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So Krishna, I Ma'am, think clear आ रही है बिल्कुल. yes, Krishna, I think it's something terrible at your end because everyone else is able to hear to me and they are answering me back also. So kindly check up your net issues. और दूसरा बेटा kindly switch on your cameras because I feel like that you are there in the class but still you are not present. I don't know why. Even मैम Parth, उसे एक बार किक कर दो, मीटिंग से किक कर दो, फिर रीजॉइन करेगा तो सही हो जाएगा. हाँ, yes Krishna, are you able to hear? मैम या फिर वो फोन से कर लेगा. पृथ्वी आपको एक सजेशन दे रहा है कि आप उसको लीव करके एक बार दोबारा से रीजॉइन करो. ओके, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. यस, पार्थ, वेयर आर यू दीस डेज? हाफ mv square. Yes, ma'am. I said, where are you these days? Yes. Yes बेटा, ठीक है. अब इसमें भी आपने फुल फ्लेज लिखना है कि m is the mass of the object and it is moving at velocity v. Okay, now the next question. Next question is interesting. अब मुझे ये देखना, kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joules, right? What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? Doubled मतलब 20 और 10 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगी, राइट? तो इसमें आप क्या 100. 100 हम 10 का स्क्वायर 100 ही होता है. ही होता है. देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट? ये हमें गिवन है 25 इज इक्वल टू हाफ इनटू m नहीं गिवन, ये गिवन है, राइट? तो ये से ये कट गया, m जो आ रहा है दैट इज 2 kgs, राइट? एक तो मेथड ये है. उसके बाद हम क्या करेंगे? मैम जब 25 कहाँ से आया? 25 कहाँ से? 5 का स्क्वायर. वेलोसिटी इज, मैम लेकिन उसमें क्या डबल होगी वेलोसिटी? नहीं बच्चा, मैंने फर्स्ट केस लिया अभी यहाँ पे बिकॉज मुझे मास नहीं मालूम, यहाँ पे लिया. ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या है, जो मेरी वेलोसिटी है बेटा वो डबल हो गई, राइट? दैट मींस 2v बन गई और यहाँ पे क्या है वो 10 बन गई, राइट? अब मास भी मुझे मालूम है तो इट इज 1/2 into 2 into 100, राइट? तो वो क्या बन गई? 100 जूल्स, राइट? ये फर्स्ट मेथड था. अब सेकंड मेथड हम पता है क्या कर सकते हैं? देखो, वो स्ट्रेट अवे मेथड है.
अब आपको काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है कैलकुलेट करनी है आपने, और वो ये कह रहा है जो वेलोसिटी है ना वो 2v डबल कर दी मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंटू m इंटू 4v स्क्वायर। अब इस 4 को ना अलग निकाल दो, 4 ब्रैकेट हाफ mv स्क्वायर। अब ये क्या है, पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी जो हमें गिवन है 25, राइट। ये देखो एक तो मेथड है जिसमें हम पहले मास कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे, वो काफी लेंथी हो जाता है। हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करना है। हमने यहाँ पे वेलोसिटी की जगह 2v लिख दिया, क्लियर होगी बात। 2v लिखते ही वो 4v स्क्वायर बन जाएगा, 4 हमने अलग कर दिया, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे ये चीज क्या आ गई, ये तो हमें गिवन है ना 25 जूल्स, हाफ mv स्क्वायर गिवन है ना हमें, 4 इंटू 25 क्या बन गया, 100 जूल्स। तो ये सिर्फ 3 लाइन में आपका न्यूमेरिकल हो गया। इसमें हमने क्या किया, पहले मास कैलकुलेट किया, फिर हमने उसको उसमें पुट किया। अब हम जब हमें 3 टाइम्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, अब आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू हाफ m 3v का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 1/2 v स्क्वायर। तो 25 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आई विल गेट माय आंसर व्हिच इज 225 जूल्स, राइट। समझ आया। तो ये वाला मेथड आपने याद रखना है, क्योंकि ये वाले जो मेथड है ना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इट वोंट कम मोर देन 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है, तो एमसीक्यूज जब भी सॉल्व करने होते हैं यू शुड हैव दैट शॉर्टकट्स इन योर हैंड्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आशी, पृथ्वी? यस मैम। आ गया ना? Yes, ma'am. Okay, great. चलिए next, find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. Yes, तो इसमें above the ground आ गया, तो कौन सी एनर्जी आएगी? By virtue of height, it is potential energy. And what's the formula for potential energy? Potential energy. Yes, formula. Krishna, are you there? MGH. Yes, mgh. So m is given to be 10, g is given to be 9.8 into 6, right? So it will come 98 into 6. 500. 58.8. By point will go. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, next question is very easy. You all are going to do. An object of mass 112 kg is at a certain height above the ground. मतलब आपको क्या given है बेटा? M is given, right? Then potential energy is given, right? And आपको H calculate करना है. G आपको given है. It is मैम बड़ा इजी है। yes. फिर इसको solve करके बता दो फटाफट से. Very good. 11.12. Yes. अरे वाह. Sorry, 11.2. चलो let's see rest others, क्योंकि मेरे पास आंसर्स नहीं है. I'm not having any answers. So verify भव्य. I'm sorry, 2.33 कुछ आ रहा है. 2 पॉइंट भी नहीं आएगा बेटा, उससे भी कम आना चाहिए. It's 3/7. 0.248 आ रहा है. Yes, it will be 0.3 आएगा बेटा. मैम 0.3। 4 बल्कि 3/7 है ना. देखो बच्चे ध्यान से, 3/7 है, तो 3/7 मीन्स आप 30 बन जाएगा ये, एंड 7 4 is 28, right? It will be 0.42 something आएगा ये. So H is equal to 0. Yes, ma'am. 0.428. Yes, meters हमारा आंसर आ गया. तो हाइट देखो कितनी थोड़ी सी हाइट थी, लेकिन क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा था, देखो 112 kgs है, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा थी. एंड एज यू नो, potential energy is directly proportional to mass. It is also directly proportional to height also.
तो अगर आप हाइट को इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, अगर आप मास को इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ओके एक्सक्यूज मैम, हाँ जी बेटा। मैम अगला क्वेश्चन गलत है मेरे ख्याल से। 2 गर्ल्स, यस बेटा, आई एम गोइंग टू ड्रॉप द पार वाले क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज बाय मिस्टेक पार जो है वो भी रह गया है टॉपिक, तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पार का टॉपिक, सब टॉपिक है, उसके बाद वी विल डू, ठीक है। तो आई जस्ट सर्च अप फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर। यस okay, now come at straight away question number 21, बड़ा big jump, right? चलो that is Yes, good। ma'am. हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में कर लेंगे हमारी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस, राइट। पहला जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस का पोर्शन हम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन वर्क डन और एनर्जी, राइट। जो पार वाले क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट हमारे ब्लॉक में कर लेंगे। ओके देखो बेटा, अब एक्टिविटीज आपको कुछ गिवन है, ओके, and you have to reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. Suma is swimming in a pond. क्या वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस यस मैम, मैम हो रहा है क्योंकि वो मूव कर रही है। Yes, she is moving. So yes, a donkey is carrying a load on its back. नो मैम। No ma'am. Why? मैम मैम, क्योंकि क्योंकि मैं वो खड़ा वर्क भी तो मैम क्योंकि वो चल रहा रह है सकता है और मैम, उसकी अगर पीठ वो पे रखा है वो कैरी। Yes. सामान, अगर ये लोड तो है, सामान तो उसकी पीठ पे ही रखा है। yes, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसलिए। Okay, next. A windmill is lifting water from a well. Yes. यस मैम, Yes, 90 डिग्री पे फोर्स लग रही है। पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। नो 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 नो, लिफ्टिंग है बेटा, वो लिफ्ट करके वहां रखा नहीं हुआ हमने, हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो इट इज एक्चुअली फोर्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट, वर्क हो रहा है। हाँ जी, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। इसमें तो कोई वर्क डन यस मैम हो रहा है, क्या करते करते हुए ही नहीं हैं? कुछ, हम कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, क्या हो रहा है पृथ्वी इसमें इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स? मैम सब्सटेंसेस कैरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। नहीं, इसमें ये बता रहे हैं इट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैम नहीं हो रहा। In terms of physics, वो निकम्मा है। Next, यस an engine is pulling a train. यस मैम, Food grains are getting dried in the sun. नो मैम, नो मैम। Yes. A sailboat is moving due to wind energy. यस मैम। यस मैम, Okay. Now, Parth, you are going to tell me this question. An object is thrown at a certain angle to the ground, moves in a curved path, and falls back to the ground. Okay. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? एक हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, वो दोबारा से ग्राउंड पे आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो हैं वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, तो क्या उसने काम किया? यस मैम, क्या काम किया? ये काम हो गया, क्योंकि उन्होंने कोनिसाइड नहीं बोला। अगर वो वर्ड बोलते कोनिसाइड तब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती? 0, राइट। यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। कोइंसिडेंट नहीं है, सो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, ठीक है। सो वर्क डन क्या होगा? ओहो सॉरी, F into S। mgh होएगा। नहीं बच्चा, ये पता क्या है, देखो ये इसने ऐसे फेंक के वो ऐसे आ गया, राइट।
हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है, समझे? हम h नहीं लेंगे, यस मैम। राइट? हम देखेंगे फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अगर वो यहाँ टिक जाता तो हम उसको mgh के फॉर्म में लेते, समझे मेरी बात? राइट? अब ये एनर्जी चेंजेस अभी मैंने आपको नहीं करवाए, वर्क डन हम कर लेते हैं। ओके, यस, नाउ टेल मी, a certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. Yes, m is given to be 20. मुझे तो काइनेटिक एनर्जी का लग रहा है। Kinetic energy, yes, बिल्कुल। आपको velocity change हो गई है, initial is 5 meter per second and final is 2 meter per second. That means आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स आपकी नेगेटिव। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ पीछे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से। ये आई थिंक यस मैम, बहुत ज्यादा आ रही है। बेटा किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेना। आई थिंक अब सबने कर लिया है म्यूट, सो यस। यस मैम, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m, हम कॉमन लेके, राइट? सो v इज 2 plus 5 into 2 minus 5. Okay बेटा, so this will be 10 into 7 into minus 3. So it will be minus 210 joules. Yes, is it clear? यस मैम। Okay, the next. Yes, ma'am. ये भी आपको बाद में करवाऊंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यस, ये हम कर सकते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हाई? देखो, इसमें क्या बताया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फ्रीली फॉल कर रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली जब ये एक हाइट पे है, सपोज करो ये हमारा ग्राउंड है, राइट? जब ये ग्राउंड पे है तो हम तब तो कोई इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जब ये हाइट पे है, हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। यही होता है ना, राइट? सो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप हाइट पे हो, बिल्कुल टॉप पे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी की क्या वैल्यू बनी? 0 plus mgh इज इक्वल टू mgh। ठीक है बेटा, अब हम मिडवे पे आ गए। सपोज करो ये हाइट है मिड, h/2, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी थी, हाफ एनर्जी इसके पास काइनेटिक एनर्जी में चली गई, हाफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के पास रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना? me इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय 2 प्लस mgh डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी बन गई है, तो ये टोटल क्या बन गई? mgh, राइट? फिर हम आ जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड पे। यहाँ पे क्या हुआ? आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई? 0। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो यहाँ पे भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी का सम क्या आ रहा है? mgh। सो हमने यहाँ पे 3 इंस्टेंस पे देखा, एक तो बिल्कुल टॉप पे देखा, मिडवे पे देखा, मिड पॉइंट पे,